into the limelight, and everybody has to wake up. The entire India has to wake up, because after after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is. about 95% of women here have anyways been teased or touched inappropriately, even by जो facilities lady doctors I'm just very shocked about what is happening in our country, and this is not the first time it's happening. This is one of the only incidents that has come into the limelight, and it's just that female doctors are harassed not only by outsiders but by insiders as well. So I would like to say that most of us here, about 95% of women here, have anyways been teased or touched inappropriately, even at this status, even at this strata of society. I have seen so many cases where they've been assaulted by their own family members, and at an age where they don't even know what a good touch and bad touch is. And I would like to say, this is not just near the perimeter of GV Panth, and it is GV Panth or RG Kar. It has been happening outside, inside, and everywhere. Also, people tell me not to be so personal about this, but you tell me, where is the line? Where do we draw the line? Is it when we ourselves get raped, or is it when people kill us? Is that the point where we should get personal? No, I will get personal today here itself, because I have empathy, because I have experienced things in the past, not necessarily in GV Panth, but outside premises, and I hope that she gets all the justice, and I hope that this march made a difference to the society, and helps in getting her justice, and helps in finding out, most importantly, helps in finding out who are the people involved in this crime. 6 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी भी 6 दिन रात लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सीबीआई की केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है, इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है. तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट में, क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है. गवर्नमेंट इज अंडर अ लॉकडाउन, द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन, एक क्राइसिस में है. नॉट जस्ट वी मेडिकोज, अब हम डॉटर ऑफ आर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ज्यादा आ रहा है. बट दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस कैन बी एनीबडी, एंड दिस कैन बी एनीबडी इन एनी वर्क प्लेस, एंड दिस इज हैपनिंग इन वन स्टेट इन इंडिया. इट कैन स्प्रेड टू एनी अदर स्टेट इफ वी डू नॉट कर्व इट राइट नाउ. अगर ये सब होने के बाद भी अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिटेड पीरियड, अभी तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है, अभी तक भी everybody who is involved in this crime has not been they are not even being investigated, honestly speaking. अभी भी बहुत लेट अर्जी डाली जा रही है, अभी भी बहुत लेट समन्स आ रहे हैं, अभी भी बहुत लेट people are being rounded up for investigations and for interrogation. तो अभी भी सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही लेट चल रही है. तो everybody has to wake up, the entire India has to wake up, because after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is. है ना? ये the government is letting you down, the people are letting you down. We doctors, we are supposed to be serving you.
है ना, दैट इज आवर ड्यूटी, बट दैट डजंट मीन यू मिसयूज अस व्हाइल वी आर डूइंग आवर ड्यूटी। कल्प्रिट है उसको तो बिल्कुल ही फांसी का सजा होना चाहिए। और दूसरा तो उनके लिए जो है एक रेस्ट रूम नहीं है। हम लोग जिस कंडीशन में काम करते हैं वो शायद लोगों को पता नहीं है। हम लोग 2-2, 3-3 दिन तक काम करते हैं। इमरजेंसी में एक लड़की अकेले 5 लोगों से भिड़ती है और 100 अटेंडरों से एक साथ लड़ती है। वहाँ पे दिन रात हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ होती है। उस सब भीड़ से हम लड़कियां जो डॉक्टर होती है वहाँ पे वो अकेले लड़ते हैं। हम लड़कियां जो भी हैं वो डॉक्टर जिस स्थिति में रहते हैं वो शायद पता नहीं है लोगों को। वो स्थिति सामने आनी चाहिए। और हम लोगों के लिए अलग से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डॉक्टर सिस्टर्स जो भी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ के बीच में मरीजों की बीमारियों से लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं। हम लोग जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। हम लोगों के लिए एक अलग से कानून आना चाहिए जिसमें हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे जिसको, उसके अंतर्गत हम लोगों को अलग से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का वर्बल या फिर कुछ अब्यूज होता है, सेक्सुअल या हरासमेंट, किसी भी तरह का कुछ भी होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए।